Hello students, today I am going to teach you the next part of the story, and that is the black aeroplane. The moon was coming up in the east behind me, and stars were shining in the clear sky above me. There was not a cloud in the sky. I was happy to be alone high up above the sleeping countryside. I was flying my old Dakota aeroplane over France back to England. I was dreaming of my holiday and looking forward to being with my family. I looked at my watch, 1:30 in the morning. Okay, in the last video I have already told you that this is a story about a pilot and how he flight a aeroplane about this thing. So here he is very happy, the pilot is very happy because the sky is totally clear, there is no cloud, so he can fly the aeroplane properly. I should call Paris control soon, I thought as I looked down past the nose of the aeroplane. I saw the lights of a big city in front of me. I switched on the radio and said, Paris control Dakota DS-088 here. Can you hear me? I am on my way to England. Over. ओके सो पायलट कहाँ जा रहा था? पायलट जा रहा था इंग्लैंड. ओके और उन लोगों का एक कोड होता है. ओके DS-088 उन लोगों का कोड है और वो इन्फॉर्म कर रहा है पेरिस कंट्रोल रूम में कि वो जा रहा है, तो क्या वो उन्हें सुन पा रहे हैं? The voice from the radio answered me immediately. DS-088, I can hear you. You ought to turn 12-degree west now. DS-088, over. Okay. There is a language of their speaking that की बात करने के बाद वो लोग ओवर बोलते हैं और वो रेडियो के थ्रू बात करते हैं. ठीक है, और वो बोल रहे हैं कि हाँ वो सुन पा रहे हैं और वो अभी क्या है 12 डिग्री वेस्ट पे है. I checked the map and the compass, switched over to my second and last fuel tank, and turned the Dakota 12-degree west towards England. I'll be in time for breakfast, I thought, a good big English breakfast. Everything was going well. It was an easy flight. Okay, तो वो वो बहुत easy था, मतलब flight तो उन्होंने बहुत ये किया है, तो अभी तक बिल्कुल सब कुछ normally जा रहा था. Paris was about 150 kilometers behind me when I saw the clouds. Storm clouds. They were huge. They looked like black mountains standing in front of me across the sky. I knew I could not fly up and over them, and I did not have enough fuel to fly around them to the north or south. Okay. Now the problem arose when the pilot found that when he was about 150 kilometers from England, then he saw the storm clouds. Okay, and he didn't have much fuel that he can go from the south or from the north, because it take much kilometers, it take much time. So okay, but when it take much kilometer, then he needs more fuel, which was not available for the pilot. I ought to go back to Paris, I thought, but I wanted to get home. I wanted that breakfast. Okay, so but he thought that he can go back to Paris, but he wanted to go to his home. It means he lives in England. Okay, he wanted to go to home and want to take his breakfast. So I will take the risk. तो उसने सोचा कि मुझे ये रिस्क लेना चाहिए. I thought and flew that old Dakota straight into the storm. Okay, उन्होंने ये सोचने के बाद डायरेक्टली स्टॉर्म के सीधा ही जाने लगे. इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक. जब वो उस ब्लैक क्लाउड के अंदर घुसे तो अचानक सब कुछ क्या हो गया, सब कुछ ब्लैक होने लगा. इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनी थिंग आउटसाइड द एरोप्लेन. द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर. आई लुक्ड एट द कॉम्पास.
ओके। जब भी वो उस क्लाउड के अंदर गए तो क्या हुआ, उनको समझ में आ गया कि कुछ भी नहीं दिख रहा है, ठीक है। और ये ये थोड़ा सा ओल्ड एरोप्लेन है, पुराना है, तो जंप कर रहा था और क्या होता, ट्विस्टेड हो रहा था। तो उन्होंने उस वक्त क्या किया, कॉम्पस देखा। आई कुड नॉट बिलीव माई आइज, द कॉम्पस वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, इट वॉज डेड, इट वुड not work. The other instruments were suddenly dead too. I tried the radio. Okay. इस क्या हुआ, जब वो उस वहाँ पे आ गए तो उन्होंने कॉम्पस देखा और कॉम्पस वाज नॉट वर्किंग, ताकि उनको समझ में आए, क्योंकि कॉम्पस किस चीज़ में लगता है हम लोग का मतलब कौन सी डायरेक्शन में हम हैं, ये चीज़ें जानने के लिए हमें कॉम्पस की ज़रूरत होती है। तो जब भी स्टॉर्म क्लाउड के अंदर वो लोग गए, द पायलट गया, तो वो देखा कि कॉम्पस जो है वो भी ठीक से तो काम तो कर ही नहीं रहा है, डेड हो चुका है। और उसके साथ जो दूसरा इंस्ट्रूमेंट्स था, जो भी चीज़ें थी, वो सारा काम करना बंद हो गया। तो वो सबसे पहले जो उसके दिमाग में आया कि ही शुड हैव टू टॉक टू द रेडियो। पैरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी? देयर इज़ नो आंसर, द रेडियो वॉज डेड टू, मतलब रेडियो भी डेड हो गया। I had no radio, no compass, and I could not see where I was. I was lost in the storm. Then, in the black clouds quite near me, I saw another aeroplane. It had no lights on its wings, but I could see it flying next to me through the storm. I could see the pilot's face turned towards me. I was very glad to see another person. He lifted one hand and waved. Follow me, he was saying. Follow me. He knows that I am lost. I thought he is trying to help me. ओके, क्या हो गया उसके बाद, जब उसको वो भी नहीं दिखा तो उसका कॉम्पस नहीं, रेडियो नहीं, कुछ नहीं काम कर रहा है, ठीक है। अचानक उसको एक दूसरा एरोप्लेन दिखा, तो उसके मन में थोड़ा सा उम्मीद जागा कि हाँ, एक तो दूसरा है, और वो उस पायलट का देख पा रहा था। और पायलट ने क्या बोला कि उसको फॉलो करने के लिए, तो वो सोचने लगा कि शायद वो उसकी मदद करना चाहते हैं। ही टर्न हीज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड। अच्छा, वो बोल रहा था वो कौन सी साइड से, नॉर्थ की तरफ से घूम के जा रहा था, ठीक है। और ही वॉज हैप्पी, पायलट हैप्पी था कि उसको वो सारी चीज़ें जो है सारी चीज़ें डेड होने के बावजूद भी वो एक ओबीडियंट चाइल्ड की तरह उस स्ट्रेंजर एरोप्लेन को फॉलो कर रहा था। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स। Now there was only enough fuel in the old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes more. I was starting to feel frightened again, but then he started to go down and I followed through the storm. Okay. वो तो उसके पीछे जा रहा था, उसको फॉलो कर रहा था, पर उसने देखा कि उसके फ्यूल में, लास्ट टैंक में जितना है फ्यूल, वो उसमें सिर्फ 10 मिनट्स तक ही, 5 to 10 मिनट्स तक ही प्लेन को लेके जा सकता है, उसके बाद नहीं जा सकता। इसके लिए वो और भी ज़्यादा डर गया। और हाफ एन आवर के बाद भी वो देख रहा था कि वो प्लेन उसी वक्त है, और अचानक वो देखा कि वो प्लेन क्या नीचे जा रहा था। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स एंड सॉ 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी। It was a runway, an airport. I was safe. I turned to look for my friend in the black aeroplane, but the sky was empty. There was nothing there. The black aeroplane was gone. I could not see it anywhere. Okay. अचानक जब वो क्लाउड के भीतर से बाहर आया तो उसको लाइट दिखा, और दिखा कि वहाँ पे एक तो रनवे है, कोई एयरपोर्ट है। तो उस वक्त क्या कर सकते हैं, वो नीचे जाकर, अगर वो उसका डेस्टिनेशन नहीं भी है तो भी वो क्या कर सकता है, नीचे जाकर एटलीस्ट थोड़ा सा फ्यूल लेके फिर उड़ सकता है। तो ये जो चीज़ उसके दिमाग में आया, उसके बाद ही फेल्ट गुड। पर जब वो देखा कि दूसरा एरोप्लेन कहाँ पे है तो उसको वो नहीं मिला। I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower.
I went and asked a woman in the control center where I was and who the other pilot was. I wanted to say thank you. She looked at me very strangely and then laughed. ओके वो वहाँ पे उतरा, ठीक है, और दूसरे को जाके पूछा कि मैं कहाँ पे था और वो दूसरा पायलट या दूसरा प्लेन कौन सा है, कहाँ पे है, मैं उसको थैंक यू बोलना चाहता हूँ. ओके, बट वो उसकी तरफ बहुत स्ट्रेंजली दिखा और वो हंस दी. Another aeroplane up there in this town? No other aeroplanes were flying tonight. Yours was the only one I could see on the radar. ओके, उस लड़की ने रिप्लाई किया कि इस स्टॉर्म की मोमेंट में वहाँ पे कोई भी आसमान में एक्चुअली कोई भी एरोप्लेन था ही नहीं, ठीक है. वो सिर्फ राडार में तो सब कुछ पता चलता है कि कितना एरोप्लेन है क्या नहीं है, तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उस रात उसी एक का ही दिख रहा था. So who helped me to arrive this safely without a compass or a radio and without any more fuel in my tanks? Who was the pilot on the strange black aeroplane flying in the storm without lights? Okay, अब वो ये पायलट खुद से ही सवाल करने लगा कि तो फिर वो कौन था जिसने उसको मदद किया, टैंक के बिना भी वो मतलब उसको इस एयरपोर्ट तक पहुंचाया, सारी इंस्ट्रूमेंट रेडियो सब कुछ ख़राब होने के बावजूद भी उसे वो दिखा. वो अपने आप में सवाल करने लगा. ओके, सो दिस इज़ द स्टोरी. ओके, इसके पीछे जो है वो इसके पीछे बहुत सारा रीज़न हो सकता है कि वो इमेजिन कर रहा था, ठीक है, क्योंकि जब भी हम कोई प्रॉब्लम में फंस जाते हैं तो हम हमेशा हमारे दिमाग में ऐसा विज़न आता है कि शायद कोई आए जिसकी मदद से हम उस प्रॉब्लम से निकल पाए, ठीक है. ये हमारे साथ बहुत बार होता है. तो हो सकता है कि पायलट जब सबसे बड़ी प्रॉब्लम में था तो वो उसके विज़न में था, पर जो कुछ भी किया उसने खुद से किया, अपने आप से किया. पर क्योंकि वो एक विज़न था, शायद तक वो इस चीज़ के लिए तैयार नहीं था, तो इसीलिए उसको समझ में नहीं आया. पर वो क्या किया, सब कुछ अपने से ही किया, ठीक है. तो जब भी हम किसी प्रॉब्लम में पड़ते हैं तो हमें हमेशा लगता है कि कोई हमारी मदद कर रहा है, बट अगर तुम्हें खुद पे भरोसा हो, खुद अगर तुम स्ट्रॉन्ग हो, तो ये हमेशा सोचना कि तुम खुद ही अपनी प्रॉब्लम की सल्यूशन निकाल सकते हो और निकालते भी हो. सो ट्रस्ट इन योर सेल्फ फर्स्ट. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स. रीड द स्टोरी केयरफुली. थैंक यू.